हाँ Are you able to listen me? Yes, sir. Okay. Just wait for a minute. Are you able to see the whiteboard? Are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Okay, so in this truth table, what you can see here that okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So here we will have the BCD input. And on the other side, we will have 7 segment output. Okay, so BCD input जो है, these BCD inputs are what? हम already जानते हैं. These are represented as A, B, C, and D, and outputs what we have is A, B, C, D, E, F, and G. These 7 outputs or segments will be there. So for glowing one of the inputs, before that we will have some outputs as some inputs as 0 0 0 0 0 हो गया, और उसके बाद 1, then 2. So let us write it 0 1 0 1 0 1 0 1. Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, in the second case it is 0 1 1. It is 0 0. Again it should be 1 1, then 0 and 0. Okay, next 4 zeros, 4 ones, then 2 zeros. So 3 4 5 6 7 8 0, then 1. Okay, so you can see here that it is 0 to 9. So if in अगर decimal में देखा जाए, so for that case it is 0, it is 1, it is 2, 3, it is 4, it is 5, it is 6, it is 7, it is 8, and it is 9. Okay, now based upon the thing what we have seen, for representing A को represent करने के लिए कौन कौन से segments, या इस 0 को represent करने के लिए कौन कौन से segments glow होने चाहिए. ये जो ABCD हमारे पास values है 0 0 0 and 0. So for representing all the bit as 0, which of the segments should be glowing? कौन सा segments glow होना चाहिए 0 को represent करने के लिए? So please tell me, अगर 0 को represent करना है तो कौन से segments हमें चाहिए? 0 को अगर represent करना है तो G को छोड़ के सब. yes, G को छोड़कर बाकी सारा glow होना चाहिए. Okay, so this is A,
बी सी डी ई एंड एफ, सिर्फ जी जो होगा वो ग्लो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर वी विल पुट 1 फॉर द सेगमेंट्स विच वी वांट टू ग्लो। सो सारे के सारे ये ग्लो होंगे एक्सेप्ट जी के, जी 0 होगा। इन द सेम वे फॉर ग्लोइंग 1, 1 को ग्लो करने के लिए कौन सा सेगमेंट हम देख सकते हैं। सो 1 आउटपुट शो करने के लिए वी कैन शो आइदर एफ ई एफ और बी सी। सो बी या सी को ग्लो करे या ई या एफ को ग्लो करे, वी विल हैव a 1. Okay, so it is up to the designer that which portion he wants to glow. So options क्या है हमारे पास, 1 के लिए E और F है। ओके, तो 1 रिप्रेजेंट करना है तो we can glow either EF either BC. So let us take it as BC. ओके, तो B और C को हमने यहाँ रखा, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू रिप्रेजेंट 2। तो 2 रिप्रेजेंट करने के लिए लेट अस सी दिस। Just wait for a minute, my system has got discharged. Okay, so for representing 2 को represent करना है तो what we can see, what we can see here, that 2. okay, so 2 represent करना है तो 2 के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है that 2 को represent करने के लिए we need these values. okay, you can see here that 2 हमने यहाँ पर लिखा है और 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए we need A, B, G, E and D. okay, so we will have A, B, D, A, B, E, D, G. okay, so A, B, D, G and E, and other should be 0. okay, in the same way for representing 3, अभी 3 को represent करना है तो you can easily see that for representing 3 we will have A, B, C, sorry D चाहिए होगा, ओके D भी आएगा तो A, B, C, D and G. okay, E and F should not be there. Now we have to represent 4. तो 4 को represent करने के लिए हमें क्या चाहिए, 4 को represent करने के लिए B. okay, let us see in the picture. हमें क्या लिखना है, 4, हमें 4 रिप्रेजेंट कराना है तो 4 रिप्रेजेंट कराने के लिए कौन कौन से बिट्स होने चाहिए, 4 रिप्रेजेंट करना मीन्स ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, तो 4 रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो वी नीड बी, सी, एफ एंड जी, तो बी, सी, एफ, जी से हमें 4 मिल जाएगा। सो बी, सी, एफ और जी के लिए हाई होगा और बाकी सारे के लिए लो होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू रिप्रेजेंट 5। तो 5 के लिए हमने ऑलरेडी देख रखा है यहाँ पर 5 के लिए क्या चाहिए, 5 के लिए हमने देखा था A, F, G, C, D. ओके, सो A, F, G, C, D. सो 5 के लिए A,
F, G, C and D, बाकी का zeros. In the same way to represent 6, तो 6 के लिए चाहिए क्या होगा? You can easily repeat it in your mind also, that अगर 6 चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा? Okay, let us draw it here. तो 6 के लिए ये सारे सेगमेंट्स होने चाहिए. तो यहाँ पर A है, यहाँ B है, इट इज C, D, E, F and G. So you can easily see that कि जो 6 को रिप्रेजेंट करना है तो we will have these. So how we can show that? 6 के लिए सिर्फ B को छोड़कर बाकी सारा ग्लो होना चाहिए. So B में 0 होगा, बाकी सारा 1 होगा. ओके, अभी 7 के लिए हमें 7 चाहिए, तो 7 के लिए कौन कौन से सेगमेंट्स होने चाहिए? 7 के लिए यू कैन इजीली सी दैट 7 के लिए एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए. तो ओनली दीज आर रिक्वायर्ड. मतलब ए, बी और सी सिर्फ चाहिए. ए, बी और सी मीन्स ए, बी एंड सी ओनली. इसके अलावा जो भी वैल्यूज हैं ऑल शुड बी 0. नाउ 8 के लिए सारा का सारा होना चाहिए. सो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी all should be high. Now for 9 what we need? For 9 we need this. So you can represent 9 in this way also, or you can represent 9 in this way. So we need A, B, C, D, F and G. So except E. E को छोड़कर बाकी के सारा का सारा है. तो E को छोड़ दें, मतलब E को हम पहले ही 0 पुट कर दें और बाकी सारे में 1 पुट कर दें. So in this way we have got the truth table for 7 segment decoder. अब जब ये truth table हमें मिल गया, then we will have different equations for all the outputs. So हमारे पास आउटपुट्स कौन कौन से हैं? ये सारे आउटपुट हैं जो कि हमने यहाँ शो किया है. A, B, C, D, E, F, G, all these are outputs, and we will have and we will have the equation for A, B, C, D, E, F and G. So we will have a total of 7 expressions, and all these 7 expressions will have some different value. So let us see that those expressions. What are the expressions? Okay. So if we want to write the expression for A, the Boolean expression for A, then what is the expression of A? In SOP, what we can write? What we can write for A के लिए 1 कौन सा टर्मिनल्स, कौन सा डिजिट्स का पोर्शन 1 है. सो 0 आप यहाँ देख सकते हो, that this one. Okay, let me take the whitener. Okay, so for this one के लिए आप क्या देख पा रहे हो? 0, फिर 1 यहाँ है. So यहाँ के लिए we have a 2, इसके लिए we have a 3, then इसके लिए we will have a 5. Here means all these values are high. ये सारा values high है, मतलब ये सारा का सारा जो वैल्यू है, ये सारा का सारा वैल्यू हमारे आउटपुट में दिखेगा. ठीक है, यानी कि जो एक्सप्रेशन आएगा, दिस एक्सप्रेशन विल हैव these values like, so 0, 1 है, 1 नहीं है, so there it should not be 1. So let me take the eraser. Okay, so we will have a 0, 1 को छोड़कर 2, 3, 4 नहीं है,
5 6 7 8 एंड 9। ओके, और बाकी का जो वैल्यूज रह गया वो क्या है, ऑल द थिंग्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड आर डोंट केयर कंडीशंस। ओके, तो कौन कौन रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद और क्या क्या आएगा, 10 11 12 13 14 एंड 15। तो इन सारे जगह पर क्या होगा, वी विल हैव अ डोंट केयर, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है इनपुट वेरिएबल्स, उसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। अगर 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो हमें जो के मैप मिलेगा वो क्या मिलेगा, के मैप में जो बॉक्सेस होंगे वो कितने होंगे, the number of boxes in K-map it will depend upon the number of variables. So number of variables 4 हैं, इसलिए 2 to the power 4 16 boxes होंगे, यानी कि 4 वेरिएबल से we will have, with the use of 4 variable we will have 16 possible combinations. Okay, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज आ गए, इसके अलावा जो वैल्यूज बचे we will use it as don't care. So 10 11 12 13 14 15 ये सारे के सारे एक्सप्रेशन में आएंगे, क्योंकि यू कैन सी हियर दैट हमने जो यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाया है और ये BC, चूंकि ये BCD में है तो 0 से 9 तक ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 अप टू दैट वैल्यूज वी डोंट केयर अबाउट दीज वैल्यूज। सो यहाँ पर जो भी वैल्यूज हो वी कैन यूज इट, बट दीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन दी main term. Okay, now we have to write the expression for B. So in the same way we have to write the expression for all these output variables for from A to G. Okay, so let us now write the expression for B. For B, what should be the expression? We can see here that B is here. B means हमारे पास यहाँ दिख रहा है, okay, so अब क्या देख पा रहे हो, at this point we will have a B. So B यहाँ है, okay, तो B के corresponding 1 कहाँ देख पा रहे हो आप, all these values are 1, मतलब जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या क्या आएगा, 1 2 3 4, ओके 4 तक आएगा। उसके बाद और क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये वाला पोर्शन, मतलब 7 8 9। ओके, ये सारे वैल्यूज हमें मिलेंगे बी में। सो एक्सप्रेशन फॉर बी अब हमें लिखना है, एक्सप्रेशन फॉर बी अब हमें लिखना है। सो बी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, सिग्मा एम, क्या 0 है, 0 वाला पोर्शन भी 1 है, सो 0 1 2 3 4 के बाद 5 और 6 नहीं है, देन 7 8 9, ओके, प्लस सिग्मा डी। सिग्मा डी के लिए व्हाट वी विल हैव, सिग्मा डी में हम क्या लिखेंगे, जो कि इस मेन टर्म में नहीं आया, मतलब 0 1 2 3 4 5 नहीं आया, 6 7 8 9, देन 10 11 12 अप टू 15। ठीक है, in the same way we can write the expression for C. Again we have to write the expression for C. So what should be the expression of C? So for C we can see the truth table again. C के लिए हमें कहाँ कहाँ 1 मिल रहा है, C के लिए हमें कहाँ कहाँ 1 मिल रहा है, you can see here that C is represented here and these are ones and these all are ones except 2। तो 2 को छोड़कर बाकी सारे के सारे वैल्यूज या इनपुट्स C में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सो एक्सेप्ट 2, ओके, 2 को छोड़कर। तो अभी C के लिए एक्सप्रेशन जो हमें लिखना है
So we can easily write the expression of C as m, हमें छोड़ना किसे है, सिर्फ एक ही को छोड़ना है, वो है 2, तो 2 को सिर्फ छोड़ेंगे, we will have a 0 1 3 4 5 6 7 8 9 प्लस सिग्मा डी, क्या रह गया यहाँ पर 0 1 2, सो 2 10 11 12 13 14 15. Okay, so this is the sigma d. Okay, so in the same way we can find out the value of d, c के बाद d, e, f and g. So again d. Okay, तो d के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, d के लिए देखें, d को देखें अगर, सो d को जब हम देखें यहाँ फिर से, सो फॉर d व्हाट द वैल्यूज वी हैव, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है. ओके, सो हम क्या देख सकते हैं, 0 के लिए, d के लिए 0 2 3 5 6 8 9. ओके, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख लें हम, d के लिए सिग्मा m 0 2 3 5 6 एंड 8 9. इंस्टीड इनको छोड़कर बाकी के जो भी वैल्यूज हैं वो आ जाएंगे डोंट केयर में. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Okay, so we will have sigma d in terms of 14 up to 15. Okay, next we will have the value of e. So we have to write down the value of e as, okay, sigma m. So let us see for e. So for e, what we can see here, that for e the values are this. Okay, e के लिए हम देख रहे हैं, तो यहाँ 1 है, देन यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो हम देख सकते हैं कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो वंस हैं वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहे हैं. तो फॉर 0 2 6 and 8, so 0 2 6 and 8. ओके, इसके अलावा जो भी बचेंगे दैट विल गो टू सिग्मा डी. ओके, यहाँ पर एक चीज देखें कि यहाँ पर 0 से 9 तक, ओके ओके ओके, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हमने कर दिया है. क्या मिस्टेक कर दिया है कि आर यू एबल टू सी द ट्रुथ टेबल, आर यू एबल टू सी द ट्रुथ टेबल.
पूरा ट्रूथ टेबल देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। ओके, सो इस ट्रूथ टेबल में हम लोगों ने जो यहाँ लिखा है 0 2 3 4 5 0 to 9 के बीच का जो वैल्यूज लिखा है, वहां पर 1 और 4 पर क्या है, ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा है कि फॉर ए के लिए जो हमने देखा 1 और 4 पर 0 है। ए के लिए 1 और 4 पर ऑलरेडी 0 है, सो वी कैन नॉट टेक इट इन डोंट केयर। ओके, सो 0 से लेकर 9 तक के जो वैल्यूज हैं उनको हम डोंट केयर में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर 0 to 9 तक अगर हम वैल्यू देख रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमारे पास या तो 0 है या 1 है। वी कैन नॉट टेक इट एज डोंट केयर। ओके, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। हियर डोंट केयर जो वैल्यूज लेंगे, दिस डोंट केयर आर ओनली फॉर 10 to 15 एंड नॉट फॉर द वैल्यूज विच आर इंक्लूडेड अप टू 9। सो यहाँ पर ये वैल्यूज नहीं होंगे फ्रॉम 1 4, ये सारे वैल्यूज नहीं होंगे। ठीक है, सो वी विल हैव वैल्यूज ओनली फ्रॉम 10 to 15। ओके, सो डोंट केयर फॉर 10 11 12 13 14 एंड 15 ओनली। ये ऐसा क्यों है? अब आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा कि ऐसा हमने क्यों किया। अभी एक्चुअली यहाँ पर जस्ट मैं थोड़ा मिस कर गया दैट कि जो हमने यहाँ पर पहले लिखा था फ्रॉम 0 से लेकर 9 तक, 0 से 9 तक हमारे पास कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू है, आइदर वो वैल्यू 0 है या 1 है। ठीक है, ये हमें पता है। सो डोंट केयर 0 से 9 तक नहीं ले सकते, वी हैव डोंट केयर ओनली फॉर 10 to 15। ठीक है ना? अगेन, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट वी हैव द वैल्यू ऑफ f। सो द वैल्यू ऑफ f हैज, we can take the value of f। okay, so from the truth table again the value of f we can see here that कौन से particular positions पर f का value 1 है। so I am just writing it directly as from the truth table you can see that it is written as sigma m 0 4 5 6 8 एंड 9। ओके, एफ इन सारे पोजीशंस पर हाई है, प्लस सिग्मा डी एट 10 11 12 13 14 and 15। okay, in the same way we have the value of g as sigma m 2 3 4 5 6 8 and 9। okay, plus sigma d at 10 11 12 13 14 and 15। ठीक है, so here we will have the equations for a b c d e f g। now the next step is what? तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें देखना था कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है। ओके, 7 सेगमेंट डिकोडर के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हमने ट्रूथ टेबल में रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट वी विल हैव द एक्सप्रेशंस। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू solve this expression and get the simplified expression for the value of different segments। so a b c d e, so we will have 7 k maps will be there for getting the expressions in the short form। we will have the k map। so okay, okay, so firstly we will see what is the value of
what is the expression of A here? The expression of A, we have sigma m 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, plus sigma d 10, 11, 12, 13, 14, 15. So we need a K-map for this. So as it is a 4 variable expression, so we will have a K-map of 16 boxes. Okay. So are you able to see the box for K-map? Yes, sir. Okay. So here we will have different values. So the values are for what are the variables? So the variables are A, B, C, and D. So based on the values of A, B, and C, and D, we will have the K-map positions 1, 2, sorry, it's from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sorry, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So we have to put the different values here in the K-map, and the values are for 0, 2, 3, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. So where is 7, 8, 9? Where it is 7, 8, 9, 8, 9, and 7 is here. So based upon these values, we have to put, yes, instead of this sigma m, we have a sigma d also. So 10 to 15, okay, we will have a sigma d as 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so we have the don't care at these positions. So now the next part is the combination, making a combination. So what are the combinations we can make? Yes, so let us take the combination. The largest possible combination is okay. One combination is this. What should be the next combination? So except this combination, we have these ones. So if we have want to combine this one, the corners of the K-map. Okay, the corners of the K-map. Next, एक ये वन बच रहा है बॉक्स नंबर 5 वाला. So to combine this
1, we will have this type of combination will be there. So I think we have included all the ones. So again एक और 1 बच रहा है यहाँ पर at this place, at the place 9. So how we can combine this? How we can combine this? So yes, for combining this one, we will have this combination of these 8 boxes. Okay, so what are the expressions we will have? The values. So for this one, तो सबसे बड़ा वाला means 2, 3, 7, 6, 5, 4, 10, 11. इनको जब combine करेंगे तो what we will have? Here we will have a 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. In the same way, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. We will have as the output, as the input. Okay, so for this combination, what we will have? Vertically अगर देखें यहाँ से यहाँ और यहाँ अगर वर्टिकली देखें, ओके, तो कहाँ पर हम देख रहे हैं? हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक यहाँ और यहाँ. तो यहाँ पर दोनों ही वर्टिकली देखें तो वी विल हैव C as common. Okay, I think all of you know how to write the values from K-map. So here we have a C. From this combination, what the output we will have? यहाँ से देखें तो we will have a A. यहाँ से अगर देखें इन 4 के कॉम्बिनेशन, चारों कॉर्नर्स के कॉम्बिनेशंस के लिए, तो we will have a, यहाँ देखें तो वर्टिकली अगर देख रहे हैं तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ 0, 0 है, यहाँ 1, 0 है, मतलब D मिल रहा है. और क्या मिल रहा है? और हॉरिजॉन्टली देखें तो we will have 0, 0 है और 1, 0 है, मतलब B मिल रहा है. So we will have a B bar D bar. Okay, so अभी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बचा है? ये बीच वाला. इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? वर्टिकली अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो we will have a B, और वर्टिकली देखें यहाँ पर तो we will have a D. तो A इज इक्वल टू क्या आ गया? A प्लस C प्लस BD प्लस B बार D बार. ओके, तो हम यहाँ पर इसे और क्या लिख सकते हैं? A प्लस C, यहाँ BD है प्लस B बार D बार है. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज XOR ऑपरेशन. तो B XOR D का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये XNOR है. ओके, so this is nothing but the XNOR. So in the same way, we have to find out the expression for B also. Now we have to find out the expression for B. The simplified expression for B. तो अभी B का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो क्या है? B का एक्सप्रेशन है सिग्मा M 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 plus sigma D 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, sigma M this and sigma D is this. So अभी हमें फिर से एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा by the use of this simple